Good morning, students. Today we shall go through the second poem from Hornbill, and the title of the poem is The Laburnum Top. Children, this poem is composed by Cat Hughes, and in this poem, The Laburnum Top. Children, laburnum is a kind of tree. Generally, in our language Hindi, we call laburnum amalta. देखिए, ये जो laburnum टॉप है, ये लेबरनम एक ट्री है जिसे हम जनरली अमलतास कहकर पुकारते हैं. इट इज ए काइंड ऑफ ट्री विद येलो फ्लावर्स. तो इन दिस पोएम द पोएट describes the beauty of this tree, laburnum top. The poet tells us about the movement of the tree. So, students come to the text of the poem. Laburnum top एक अमलतास का पेड़ है और उसकी जो टॉप है उसके बारे में बताया है. मीनिंग देयर बाई इन दिस पोएम द पोएट ब्यूटिफाइज दिस ट्री कॉल्ड laburnum. The laburnum top is silent, quiet, still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch. देखिए, पोइट हमें बताता है ये जो लेबरनम टॉप है ये अमलतास का जो पेड़ है और जो इसकी चोटी है बिल्कुल साइलेंट और स्टिल है. देयर इज नो एनी मूवमेंट इन द ट्री. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट एंड स्टिल. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट मीन्स लेबरनम का जो शिखर है, लेबरनम पेड़ की जो चोटी है, सितंबर के मंथ में दोपहर के बाद इन द आफ्टरनून पीले सूर्य की रोशनी में शांत और एकदम स्थिर है, निश्चल है. The poet tells us that laburnum top is quite silent and still, and as it is the month of September, so the yellow sun rays are falling on its top and it is looking quite silent and still. It is the time of the day afternoon. A few leaves yellowing, all its seeds fallen. A few leaves yellowing. Some of the leaves of the tree were yellow. देखिए, इसकी कुछ पत्तियाँ पीली हैं, कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं. And all the seeds fallen. And all the seeds from the tree have fallen. और पेड़ से इसके जो सारे बीज हैं वो गिर गए हैं.
till the goldfinch comes with a twitching chirrup, and all of a sudden goldfinch comes. Children, goldfinch is a small singing bird with yellow feathers, yellow wings, and this bird, the goldfinch, is a small bird like a sparrow, and so it is called सोन पंछी और सोन चिड़ी। गोल्डफिंच नाम की जो चिड़िया है स्पैरो की तरह होती है और एक स्मॉल सिंगिंग बर्ड है। तो देखिए पोइट हमें बताता है कि लेबनम टॉप, लेबनम जो ट्री है बिल्कुल शांत और स्थिर अवस्था में है। तभी क्या होता है, अचानक ही गोल्डफिंच कम्स, ए बर्ड, ए स्मॉल बर्ड कॉल्ड गोल्डफिंच एट वंस कम्स। एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम गोल्डफिंच है वो आ जाती है। तब अचानक ही गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आती है, चहचहाते हुए आती है। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच है। तो अचानक हैरानी के साथ ब्रांच के किनारे आकर बैठ जाते हैं। द गोल्डफिंच, a small singing bird comes and sits by the end of the branch of the tree, branch of laburnum top. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and trills. अब देखिए क्या होता है कि तब जब गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आ जाती है तो वो एक लिजर्ड के समान, तब वो एक छिपकली के समान बड़े सुस्ती और सावधानी से पेड़ की सघनता में घुस जाते हैं। Then the bird in the form of a lizard, just like lizard, at once enters into the thickness of the tree and a machine starts up. और उसकी चहचहाट तथा पंख के फड़फड़ाने और शोर के साथ एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। Then the machine starts up, meaning thereby there is at once tremor in the tree and the leaves of the tree and the branches of the tree starts shaking. There is a tremor and trillings. The whole tree trembles and thrills, and the whole tree starts shaking and there is a tremble and trills. अब देखिए जब गोल्डफिंच नामक चिड़िया पेड़ की सघनता में घुस जाती है, when it enters into the thickness of the tree, तो उसके चहचहाने के साथ, पंखों के फड़फड़ाने के साथ और शोर के साथ एक मशीन शुरू हो जाती है और द होल ऑफ द ट्री स्टार्ट शेकिंग। पूरा वृक्ष, पूरा जो लेबनम ट्री है वो एकदम उसमें कंपन शुरू हो जाता है। उसकी पत्तियां हिलने लगती हैं, शाखाएं हिलने लगती हैं और ऐसा लगता है मानो पेड़ रोमांचित हो उठता है। फिर कभी देखिए कहता है इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द पोएट टेल्स अस कि इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली।
ये उसके परिवार का इंजन है. इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली. देखिए, व्हेन द मशीन स्टार्ट्स अप एंड व्हेन देयर इज ट्रेमर, व्हेन देयर इज शेकिंग इन द laburnum tree, and when the leaves and branches start shaking, so the poet calls it the engine of our family. कभी देखिए इसे उसके परिवार का इंजन कहकर पुकारता है. She stokes it full, then flirts out to a branch end. अब देखिए, जो गोल्डफिश नामक चिड़िया है वो उसे पूर्ण रूप से, पूरी तरह से उकसा देती है, पूरी तरह से हिला देती है. मीन देयर स्टार्ट्स ए काइंड ऑफ मूवमेंट इन द ट्री, देन फ्लट्स आउट टू ए ब्रांच एंड. और तब वो एक ब्रांच के किनारे अपने पंखों को फ्लर्टिंग करते हुए, फड़फड़ाते हुए ब्रांच के किनारे पर आ जाती है. showing her bad face, identity mask, and she at once showed her bad face. Bad stands for धारीदार. और वो जो गोल्ड फिंच नामक चिड़िया है वो अपने धारीदार चेहरे को सामने लाती है. धारीदार चेहरा जो उसकी पहचान है वो हमें दिखाई देता है, नजर आता है. शोइंग हर बैड फेस, आइडेंटिटी मास्क, और जो उसकी एक आइडेंटिटी है, जो उसकी एक पहचान है. देन विद ईडी डेलिकेट whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite. और फिर कवि कहता है कि फिर वह एक अलौकिक और मीन्स डेलिकेट विसल के साथ, कोमल सीटी वाली चहचहाने की आवाज़, फुसफुसाहट के साथ दूर अनंत आसमान में उड़ जाती है. एंड द laburnum subsides to empty. और जब वो उड़ जाती है, जब गोल्डफिंच नामक चिड़िया उड़ जाती है, तो फिर laburnum ट्री, जो laburnum का वृक्ष है, वो फिर शांत और सुनसान हो जाता है. It again becomes silent and empty. So, in this poem, the poet wants to tell us that before coming of the goldfinch, the laburnum top, the laburnum tree was still and silent, and it was quiet. And when finally the bird goldfinch flies away from there, it again becomes, laburnum tree again becomes quiet, silent and still. Children, the poet wants to tell us that there is movement in the tree when the goldfinch enters into the thickness of it. When the goldfinch enters into the thickness of the tree, it starts shaking. There is kind of movement in the tree. The leaves start shaking, the branches start shaking, and there is means we can say chirrupings, a kind of noise, and the whole of the tree tremble. But when goldfinch goes away from there, flies away from the tree, it again becomes silent and still. So children, this is the poem The Laburnum Top, and this poem is composed by Ted Hughes. I hope you have got this poem, you have understood this poem, and after the completion of this poem, let us discuss some of its questions and answers.
So the question is, what do you notice about the beginning and the ending of the poem? देखिए, पोएट हमें बताता है कि आपने कविता के शुरू से आखिर तक क्या देखा। तो द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम प्रेजेंट द सेम सीन। देखिए, इस पोएम का जो बिगनिंग है और एंडिंग है वो सेम सीन हमारे सामने प्रेजेंट करता है। द लेवरनम टॉप इज ऑल साइलेंट एंड स्टिल। जो लेवरनम टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट और स्टिल है। देयर इज नो मूवमेंट इन द ट्री। और पेड़ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। टू वॉट इज द वर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? वॉट इज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन? देखिए, इस चिड़िया, ये जो पक्षी जिसका नाम गोल्ड फिंच है, तो गोल्ड फिंच की जो गतिविधियां हैं उसकी तुलना किससे की है? और व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस कंपैरिजन? और इस तुलना का क्या आधार है? तो द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर टू ए लिजर्ड। देखिए, इस बर्ड के मूवमेंट को एक लिजर्ड के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है। गोल्ड फिंच के मूवमेंट को छिपकली के मूवमेंट से कंपेयर किया गया है, बिकॉज द बर्ड एंटर्स द ट्री लाइक ए लिजर्ड। क्योंकि ये जो चिड़िया है वो लिजर्ड के समान, एक छिपकली के समान इस पेड़ की थिकनेस में प्रेजेंट मीन्स एंटर करती है, जो कि स्लीक, अलर्ट और एब्रप्ट है। स्लीक मीन्स स्मूथ, अलर्ट एंड क्वाइट एब्रप्ट। वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाई द पोइट? अब देखिए, फिर क्वेश्चन उठता है, अगेन द क्वेश्चन अराइजेज कि कवि के हृदय में इंजन का जो इमेज है वो क्यों आया? तो ए साउंड ऑफ मशीन कम्स फ्रॉम द ट्री। देखिए, जब गोल्ड फिश नामक चिड़िया पेड़ के अंदर घुस जाती है तो एक प्रकार की मशीन आरंभ हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड द इंजन ऑफ हर फैमिली, जिससे कि पोएट उसके परिवार का इंजन कहकर पुकारता है। एज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू हर फैमिली, जैसे कि मानो ये उसके फैमिली को सपोर्ट प्रदान कर रहा हो। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? अब देखिए, फिर कवि कहता है कि आप इस पोएम में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? तो द इमेजेस क्रिएटेड बाय मूवमेंट एंड चर्पिंग, फ्लटरिंग, फ्लर्टिंग एंड फ्लर्टिंग ऑफ द वर्ड हैज़ फैसिनेटेड मी मोस्ट। तो देखिए, जो पोइट के द्वारा मूवमेंट की इमेज क्रिएट की गई है, इसमें जैसे चिड़िया का चहचहाना, उसके पंखों का फड़फड़ाना और फ्लर्टिंग ऑफ द वर्ड, वो सबसे ज़्यादा मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है। वॉट डज द फ्रेज हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? देखिए, उसका खाली चेहरा और पहचाने हुए निकाब से आप क्या समझते हैं? तो द पोएट टेल्स अस दैट दिस मीन्स दैट द फेस ऑफ द बर्ड is marked with stripes. It looks like a mask. Her face serves as her identity, and this word is recognized by it. So children, this is the poem The Laburnum Top, and we have also discussed some of the questions, small or short questions from this poem, and this is the poem The Laburnum Top, composed by Kent Hughes. I hope you have got this poem. Thank you.